Hello students, how are you all? I hope all of you are fine and doing well with your study. In our today class, we studied about the refraction through the spherical lenses. In the previous classes, we studied about the reflection through the spherical mirrors. So basically, spherical mirrors concepts, okay, image formation by the spherical mirrors based on your reflection phenomenon. But in case of the lenses, we studied about the refraction phenomenon. So basically the spherical lenses are depend on the phenomenon of the refraction. So first, the spherical lenses, in case of the spherical lenses, we have to know that what are the lenses. What is lens? Okay, so lens, basically lens has a very important role in our day-to-day life because to construct many of the optical instruments like your cameras, telescope, microscope, spectacles, and your film projectors. These are some optical instruments which are made on the concept on the spherical lenses. So what is a lens? What is the definition of lens? उससे पहले तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि लेंस का डेफिनेशन क्या होता है. What is a lens? So basically लेंस का डेफिनेशन देखो यहाँ पर लिखा गया है. First तो working of lens is based on the refraction phenomenon. Then what is a lens? A lens is a transparent material which is bounded by two surfaces. क्या कहा? Lens is a transparent material like your glass material. Glass is also transparent. So lens is a transparent material which is bounded by two surfaces out of which one each must be spherical or two also be spherical. Either एक surface spherical हो और दोनों ही spherical रहे, but एक spherical रहना चाहिए. दो सरफेस में से एक स्पेरिकल जरूर से रहना चाहिए. तो इसी चीज को यहाँ पर लिखे दैट ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच one or both surfaces are spherical but one must be spherical. So how many types of spherical lenses are there? There are two types of spherical lens are there, convex lens and concave lens. In case of the spherical mirror, the same thing is that is convex mirror and concave mirror. In case of the spherical lens, there are two lenses, that is convex lens and concave lens. So now we move to the types of lenses, that how many types of lenses are there. Two types of lenses are there, so convex lens and concave lens. So how we construct a convex lens and a concave lens? These are the two types of lenses. First we talk about the कन्वेक्स लेंस. यहाँ पर पहले तो एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग जितने चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम लोग यही कंसीडर करेंगे कि ये सब एक थीन लेंस है. जितने भी डेरिवेशन करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम लोग हमेशा थीन लेंस के लिए ही करेंगे. बहुत ही पतले लेंस के लिए, यहाँ पर तो आप लोगों को दिख रहा होगा बड़ा मोटा मोटा सा दिख रहा होगा, बट हमेशा हम लोग कंसीडर करेंगे दैट द थीन लेंसेज. थीन लेंस मतलब जिनका थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो. ओके, एंड द अपर्चर मतलब क्या होता है वो आप लोग को मिरर के केस में बताया था. व्हाट इज अपर्चर? दैट इज द डायमीटर ऑफ ए सरफेस. मतलब जितना भी जो स्पेरिकल मिरर या स्पेरिकल लेंस का जो डायमीटर होता है उसी को बेसिकली अपर्चर कहते हैं, जहाँ से हमारा रिफ्रैक्शन होगा. जितने पोर्शन से हमारा रिफ्रैक्शन होगा उसी को हम लोग अपर्चर बोल के बोलते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. So basically convex lens is three types. Okay, how many types? Three types. That is biconvex और equiconvex lens, जिसके दोनों सरफेस जो है वो convex रहते हैं. Okay, the two surface are convex in case of the biconvex and equiconvex lens, and mostly we studied about this lens, that is biconvex and equiconvex lens. But the other two types of lenses are, this one is plano convex lens. That means one surface is convex and one surface is plane. So that's why its name is plano convex lens. And the third one is concavo convex lens. Concavo convex lens, that means this first word only show that the shape. Okay, जो concavo convex है ना,
कनकेव जो वर्ड है, कनकेव वो वाला जो वर्ड है वो शो कर रहा है क्या, इस मिरर का शेप शो कर रहा है। बट जो सेकंड में जो वर्ड लिखा गया है कन्वेक्स, इसी मिरर का वो नेचर है, इट इज ए ऑल्सो कन्वेक्स लेंस। एंड कन्वेक्स लेंस के बारे में अगर हम लोग ये जाने कि कन्वेक्स लेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, दैट इज थिक एट द मिडिल, वो मिडिल में थिक होगा। ओके, सो इट इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। Okay, the convex lens are thick at the middle and thin at the edges, and these lenses, convex lens, always converge the light, so that we say that convex lens also as converging lens. Okay, convex lens is also known as converging lens. अगर हम लोग मिरर के केस में जाए, मिरर के केस में किसको कन्वर्जिंग बोलते थे, कनकेव मिरर को बोलते थे। क्यों, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज करता था, इस वजह से। बट यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कन्वेक्स लेंस जो होगा वो आपके रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा एट ए पॉइंट, सो दैट वी टोल्ड दैट कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ओके, नेक्स्ट मूव टू द concave lens. What is concave lens? Concave lens is also three types, that is biconcave lens. In biconcave lens we see that the two surfaces are concave. Okay, the two surfaces are concave, and here one surface is plane and the other one is concave, and this one is convex, so concave lens. Mostly we studied about this biconvex and biconcave lens. ये दोनों इतने बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, ज़्यादातर हम लोग यही दो लेंसेज के बारे में ही हमेशा पढ़ते हैं, एंड मोस्टली अबाउट द थीन लेंसेज, नॉट द थिक लेंसेज। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट वी मूव टू सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ योर लेंस। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज। ओके, सो इम्पोर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट वन, जैसे कि हम लोग ये के केस में पढ़े थे, आपके मिरर्स के केस में पढ़े थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपरेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड व्हाट इज द सेंटर, वही सब टर्म्स यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो आप लोग देख लो बेसिक डिफरेंस क्या है मिरर और लेंस के बीच में। अब देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ द लेंसेज, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ये भी एक स्फीयर का ही पार्ट है, तो ऑब्वियसली इसके भी सेंटर होंगे, इसके भी रेडियस होंगे। बट दिस lens, okay, this convex lens is bounded by two surfaces, one is this one and another one is this one. There are two surfaces of the spherical of the sphere, so we draw like this. अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये एक हो गया हमारा स्फीयर, अगर इस सरफेस को लेके अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा और एक स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर दो स्फीयर के पार्ट्स यहाँ पर नजर आते हैं, तो ये हो गया अगर आपका एक स्फीयर का सेंटर, एंड ये वाला हो गया दूसरे स्फीयर का सेंटर। सो इसको नेमिंग कर देते हैं, इट इज C1, दिस वन इज C2। ओके, सेम वी ड्रॉ इन केस ऑफ द कनकेव लेंस, दैट इज वन दिस स्फीयर। ओके, ये एक स्फीयर हो गया, दिस वन इज द सेंटर, एंड ये वाला जो सरफेस है ये हो गया उसका स्फीयर, दिस वन इज द सेंटर, सो C1, C2. So these are the center of curvature and we denote it by the letter C. Then what is the radius of curvature? The radius of curvature from the midpoint to the center or from the surface of the mirror. अब देखो मिरर का सरफेस कहाँ पर है, ये वाला हो गया आपका मिरर का सरफेस। ये वाला अगर आपका मिरर का सरफेस हो गया, मिरर के सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है हमारा रेडियस। अगर हम लोग यहाँ के मिड पॉइंट से ले तो ये वाला हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इस सरफेस के लिए फॉर द सेकेंड सरफेस, अगर ये वाला हो गया फर्स्ट सरफेस और ये वाला हो गया आपका सेकेंड सरफेस, तो सेकेंड सरफेस के लिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से होगा, उसके सरफेस से सेंटर तक, सो दिस वन इज R2। ओके, इस वाले सरफेस में भी बस वैसे ही है, ये वाले सरफेस के लिए ये हो गया सरफेस से सेंटर तक, दैट इज R2, एंड ये वाला हो गया आपका R1।
These are the radius of curvature and the center of curvature. Okay, so in case of the spherical mirror, there are only one center of curvature and one radius of curvature. But in case of the lenses, there are two center of curvature and two radius of curvature. Okay, in case of the biconvex or equiconvex lens, if we consider here the plano-convex lens और plano-concave lens, ऐसे तो आपके plano-convex और plano-concave आते नहीं हैं, बट आप लोग जान लो, अगर हम लोग plano-convex लेते हैं like this, एंड अगर हम लोग लेते हैं this one is plano-concave lens. So in this case this one is like a sphere. ये हो गया आपका sphere. तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज C1, एंड इसका ये वाला सरफेस के लिए ये वाला हो गया आपका फर्स्ट सरफेस विच इज ए कन्वेक्स सरफेस. तो ये फर्स्ट वाला कन्वेक्स सरफेस के लिए आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द सरफेस. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑब्वियसली हमारा सेंटर से रेडियस क्या होता है सरफेस के लिए? परपेंडिकुलर ही होता है. अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लिए तो वो हो गया हमारा सरफेस के लिए रेडियस. तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया हमारा R1. सो व्हाट इज ए क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द प्लेन सरफेस. हमेशा याद रखना कि प्लेन सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर इस प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2. ठीक है, हमेशा याद रखना फॉर द प्लेन सरफेस ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू इज इन्फिनिटी. हमें पता नहीं होता है एक प्लेन सरफेस के लिए, एक प्लेन सरफेस का सेंटर एक्चुअली में कहाँ होता है, या प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इन्फिनिटी. कभी कभी अगर आप लोग न्यूमेरिकल बेसिस में ये वाले फिगर अगर फेस कर लो, उस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर इस ऐसे वाला केस हो, हम लोग कन्वेक्स का तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट प्लेन सरफेस का हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज कंसिडर टू बी इन्फिनिटी. सो इस केस में भी वैसे ही हो जाएगा. यहाँ पर हो गया आपका क्या, आपका स्फीयर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आपके सरफेस से, सॉरी एक मिनट, आपकी जो सरफेस से, यहाँ पर सरफेस से ये हो गया आपका R1. ओके, और जो प्लेन सरफेस से आपका जो प्लेन सरफेस से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? यहाँ पर भी इन्फिनिटी ही होगा. तो ये वाला जस्ट बेसिक बातें हैं. कभी अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह में फेस करो कि इस टाइप के लेंसेज, तो आप लोग कर सकते हो, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. सो नेक्स्ट टर्म हम लोग का है, थर्ड टर्म इज ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकेंड वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन थर्ड वन इज द ऑप्टिकल सेंटर. ओके, जैसे हम लोग के स्फेरिकल मिरर के केस में आपका पोल काम करता था, वैसे ही यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर भी होता है. अब देख लो कैसे होता है. अगर हम लोग ऐसे एक लेंस लेते हैं, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर विच इज डिनोटेड एज O. इसको कोई C भी लिखते हैं, बट हम यहाँ पर C प्रीफर नहीं करते क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी C ही लिखते हैं. तो इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर आज O भी लिख सकते हैं. तो ऑप्टिकल सेंटर को बेसिकली O लिखोगे तो सही रहेगा. सो ऑप्टिकल सेंटर हो गया द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस. और अगर इस केस में हम लोग देखना चाहे, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the midpoint of the refracting surface of the lens is your optical center which is O. ठीक है. One of the important properties in case of the optical center का एक बहुत ही important properties है जो कि आप लोग बहुत टाइम ये सब न्यूमेरिकल्स वगैरह या ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह में आप लोग फेस करोगे, that when a ray of light passes through the optical center it follow a straight path which is undeviated. ओके, ऐसे तो हम लोग रिफ्रैक्शन में जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के केस में हमारा क्या होता है, जब भी एक रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, देखो ये हो गया आपका ग्लास मीडियम. ओके, दिस लेंस इज ए ग्लास मीडियम एंड दिस वन इज ऑल्सो एयर मीडियम एंड दिस वन इज ऑल्सो एयर मीडियम. अगर एक रे ऑफ लाइट पास कर रहा है यहाँ पर, देन वो जैसे ही ग्लास मीडियम में एंटर करेगा
देन वो हमारे नॉर्मल के साथ क्या हो जाएगा, ऐसे नॉर्मल के साथ हमारा बेंड कर जाएगा, यहाँ पर रे ऑफ लाइट बेंड कर जाएगा। फिर ओब्वियसली ग्लास मीडियम से जब AR मीडियम में निकलेगा तो वो रे ऑफ लाइट हमारा क्या कर जाएगा, वो नॉर्मल से अवे हो जाएगा। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन फेनोमेनन, जो कि आपके लेंस के केस में काम करता है। बट यहाँ पर जो मेन प्रॉपर्टीज है, दैट इज when a ray of light passing through the optical center of the lens, it is undeviated. ओके उसका जो फिनोमिनन होता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, वो रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड रहता है, वो डेविएट नहीं करता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन होता है मतलब वहाँ पर रे ऑफ लाइट बेंड करता है, थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट होता है। बट एक रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाता है, वहाँ पर रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं करता। खैर इसके भी अपने रीजन है, जैसे कि यू ऑल्सो स्टडीड अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के केस में आप लोग पढ़े हो रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, एंड ऑलवेज आई said that these terms are only for the thin lenses, not for the thick lenses. So अगर हम लोग ग्लास स्लैब के केस में पढ़े हैं, दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ये वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं, दिस पार्ट, ओके ये वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये ग्लास स्लैब की तरह ही हो रहा है। So when a ray of light, this one is the optical center. So when a ray of light try to passes through the optical center, ऑप्टिकल सेंटर से जब ट्राई करता है वो पास करने के लिए, मतलब ओब्वियसली इधर जाना चाहिए उसको, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है, ओब्वियसली आप लोग ग्लास स्लैब के केस में पढ़े हो, दिस वन इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा रे ऑफ लाइट हमारा नॉर्मल से यहाँ पर बेंड कर जाता है, बेंड करने के बाद वो फिर से ऐसे चले जाता है इन द एयर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्टिंग होता है, उस शिफ्ट को हम लोग क्या पढ़े थे, दैट इज लैटरल शिफ्टिंग और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये वाला केस आप लोग पढ़े हो, ग्लास स्लैब के केस में पढ़े हो कि ग्लास स्लैब में लैटरल शिफ्टिंग कैसे होता है, वो एक्चुअल पाथ में नहीं जाके वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। जितना पाथ वो डेविएट होता है, जितना लेंथ वो डेविएट होता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, लैटरल शिफ्टिंग। तो इस केस में ये जो शिफ्टिंग है इसको हम लोग दे देते हैं टी, ठीक है। और एक चीज़ भी वहाँ पर बताए थे कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ओके लैटरल डिस्प्लेसमेंट और द लैटरल शिफ्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। आपका ग्लास स्लैब का थिकनेस जितना ज़्यादा होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना कम होगा, और थिकनेस जितना कम होगा आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही कम होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। सो हियर वी ऑल्सो कंसिडर अबाउट द थीन लेंसेज। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, थीन लेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग बहुत मोटा सा लेंस आप लोगों को दिखा दिए ऐसे दिखाने के लिए, बट एक्चुअली में हम लोग कौन सा लेंस कंसिडर करते हैं, थीन लेंस कंसिडर करते हैं। मतलब ये ले लो, ये वाला जो हो जा रहा है, ये वाला पार्ट इतना बड़ा तो नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग थीन लेंस लेते हैं, मतलब इसका जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा और छोटा बन जाएगा, और अगर थीन लेंस लेंगे तो और छोटा बन गया, और थीन लेंस लेंगे तो और छोटा बन गया, ठीक है। ऐसे जितना थीन लेंस लेंगे उतना ही छोटा हमारा वो जो स्लैब मेथड का हम लोग का यहाँ पर बन रहा है वो और ही छोटा बनते जाएगा। सो थीन लेंसेज के केस में आपका जो शिफ्टिंग भी होगा वो बहुत कम होगा, इट इज अप्रोक्सीमेट टू जीरो। जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, द लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। इसीलिए हम लोग यहाँ पर थीन लेंस जब कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर शिफ्टिंग इतना कम हो जाता है। यहाँ पर अगर शिफ्टिंग बहुत कम हो जाएगा तो आपको वही लगेगा कि रे ऑफ लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है विच इज अनडेविएटेड, ओके, जो कि डेविएट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, डेविएट क्यों नहीं हो रहा है, एक्चुअली में डेविएट हो रहा है, बट फॉर द थीन लेंसेज केस इट इज undeviated because thickness is very small, so lateral displacement is also very small. So optical center के केस में क्या होता है, हमेशा वही रूल याद रखना, when the ray of light passes through the optical center it is undeviated. Okay, then next is your principal axis. Fourth one is your principal axis. What is your principal axis? Obviously the same thing,
It is a optical center. Here is center of curvature C1, C2. So the straight line passing through the center of curvature and the optical center. The straight line passing through the center of curvature and the optical center is known as your principal axis, which is always perpendicular with your surface of the two lenses. Okay, हमेशा याद रखना principal axis is always perpendicular with the surface of the lens. Okay, then aperture. What is aperture? Another reflecting surface. Sorry, here is the refracting surface. Sorry, कभी कभी refracting हो जा रहा है. So जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जहाँ से हमारा रिफ्रैक्शन होगा, रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होंगे, सो दिस पोर्शन इज नोन एज द एपरेचर. अगर हम लोग ये लेते हैं m, ये लेते हैं n, सो m n इज द एपरेचर. ओके, विच इज बेसिकली नोन एज द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस. ओके, एपरेचर इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस. So these are the basic terms, basic important terms in case of the spherical lens. Now we studied about the principal focus and the focal length. Okay, so what is the principal focus and the focal length? See, in case of the convex lens की केस में अगर यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं and this one is the principal axis. Sorry. Okay, this one is the principal axis and these are some parallel rays of light. Okay, these are some parallel rays of light. ये चीज हम लोग पहले ही बताए हैं. The convex lens is a converging lens. It converges the rays of light. Okay, so in this case, when the parallel rays of light are when the rays of light are parallel with the principal axis, then after refraction through the lenses, after refraction through the lenses, it meet at a single point which is known as the principal focus. And what is the focal length? Obviously, it is the distance between the optical center and the focus, which is known as the focal length. Okay, so here इस सरफेस के लिए तो हम लोग देख लिए कि ये वाला हो गया आपका रिफ्रैक्शन और यहाँ पर आपका फोकस हो गया. बट हमेशा याद रखना कि यहाँ पर और भी एक सरफेस है. दिस वन इज द सेकेंड सरफेस. ये हो गया आपका सेकेंड सरफेस. ये फर्स्ट सरफेस से आपका रिफ्रैक्शन हुआ. तो अभी सेकेंड सरफेस के लिए अगर हम लोग देखेंगे, ऐसे ही एक ड्रॉ करते हैं. ओके, सो दिस वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. अगर यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट इस सरफेस में आके इंसिडेंट हो रही है, अगर इस सरफेस में आके इंसिडेंट होगी, देन दे रिफ्रैक्ट एंड मीट एट ए सिंगल पॉइंट which is known as the second focus of the convex lens. Okay, so this one is the first focus of the convex lens and this one is the second focus of the convex lens. So always convex lens has two focus and focus का plural form होता है foci, जिसको हम लोग FOCI से लिखते हैं. two foci. Always convex lens has two foci. उसका pronunciation होता है foci, which is the plural form of the focus. So next, in case of the concave lens के केस में भी वैसे ही सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. जैसे कि आपका हो गया, ये वाला हो गया concave lens. Okay, this one is the concave lens, this one is the principal axis. When the rays of light are parallel with the principal axis, the concave lens is always diverging in nature. So it diverges the ray of light. Okay, it diverges the ray of light. So when we extend it in the backward direction, it meet at a single point which is known as the focus, first focus. Okay, so in case of the concave lens, what happens? The rays of light are parallel with the principal axis. After refraction, they diverge
Okay, so when we extend it in the backward direction, they meet at a point which is known as focus, and it appears to be come from focus. When the ray of light are diverged at a point, these diverging rays are appears to come from the focus. ठीक है, इस केस में भी जैसे फर्स्ट फोकस हुआ उसको हम लोग वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कनकेव लेंस का हम लोग यहाँ पर सेकेंड फोकस भी बना सकते हैं जब हमारा रेज ऑफ लाइट इधर से आ रहा हो, इधर से आके यहाँ पर रिफ्रैक्ट कर रहा हो, देन द रेज आर डाइवर्जिंग एट दिस साइड एंड वी फाइंड द सेकेंड फोकस एट दिस पॉइंट। ओके, सो दिस वन इज द प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ, बट सब सेम है, बस लेंस मिरर अगर आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो लेंस के केस में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना ही इमेज फॉर्मेशन में, ना ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट में। सेम कॉन्सेप्ट है, बट वहाँ पर सिर्फ एक ही सरफेस रहता था, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ही फोकस, बस यहाँ पर उसके और एक बढ़ जाएंगे, जैसे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 फोकस, बस वही कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा कुछ बेसिकली डिफरेंट नहीं है। ये चीज़ें आपको उतने ही समझने में आसान होगी जितना कि मिरर को समझने में हो। सो नेक्स्ट वी मूव टू द रूल्स फॉर द कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस फॉर इमेज फॉर्मेशन। ओके, so these are some of the rules for obtaining images in case of the concave lens and convex lens। क्या क्या रूल्स की हमें ज़रूरत है, जैसे कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के केस में हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे तो उसके पहले हम लोग कुछ रूल्स के बारे में पढ़े थे, जैसे कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा तो वो फोकस से होते हुए जाएगा, अगर फोकस से जा रहा है देन वो पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यही सब कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग रिफ्लेक्शन के केस में इमेज फॉर्मेशन किए थे। सो यही कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर भी है, कुछ डिफरेंस के साथ। हमेशा यही बोल रहे हैं कि कन के मतलब स्पेरिकल मिरर एंड स्पेरिकल लेंसेज के बीच में जो भी आप लोग पढ़ोगे दोनों ही सेम है, बट थोड़े कुछ डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फर्स्ट इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। सो व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे ऑफ लाइट is parallel with the principal axis. So after refraction in case of the convex lens, when the ray of light is parallel with the principal axis, it moves through the focus. Okay, it moves through the focus. So the same case in case of the concave lenses, when the ray of light is parallel with the principal axis, after refraction it diverges. Okay, after refraction is diverged and it appears to be कमिंग फ्रॉम दी फोकस। हमें यही लगेगा कि वो जो डाइवर्जिंग रे है वो फोकस से ही आ रहा है, अगर उसको हम लोग बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस पर ही मीट करेगा, तो हमें यही फील होगा कि वो जो रे डाइवर्ज हुआ है वो फोकस से ही आ रहा है। देन द सेकेंड रूल, when the ray is passes through the optical center, अगर यहाँ पर एक लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए एक रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, then it is undeviated. Okay, undeviated and or goes straight. Then in case of the concave lens, the same case, when the ray of light is passes through the optical center, it goes straight. Then third rule is when the ray of light is passes through the focus. Okay, when the ray of light is passes through the focus in case of the convex lens, then after refraction it parallel with the principal axis. Then the next, in case of the concave lens, when the ray of light appears to be passes through the focus, एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करता है हमारे कनकेव लेंस में जैसे कि वो फोकस के तरफ ही जा रहा है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द स्पेरिकल लेंसेज। So in the next class we studied about the image formation in case of the concave lens and in case of the convex lens। जैसे ही हम लोग मिरर के केस में 6 और 2 केसेस पढ़े थे, जैसे कि आपके कनकेव मिरर के केस में हम लोग 6 केसेस पढ़े थे और कन्वेक्स मिरर के केस में 2 केसेस पढ़े थे। यहाँ पर उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग 6 केसेस पढ़ेंगे और जो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग 6 केसेस पढ़ेंगे और जो कनकेव लेंस है उसके केस में हम लोग 2 ही केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड इन केस ऑफ द कनकेव लेंस। ओके, थैंक यू।